In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Today, students, again, we are here with the reading selection 5.3. And this is a poem here today, The School Boy, written by William Black. As you see there, the picture on our cover page, and students they have been learning in a class, and they uh, consider themselves like birds in a cage. And you see there is a picture outside in a window. Students they have been playing and enjoying in summer morning. So you see this poem is likely the same feelings and emotions have been rendered by William Black here today in this poem. This poem tells us what the poet loves to do in the summer morning, and it is as it is considered the most pleasant season in England. So here today we are going to learn about this poem for all of you, as we are going for reading comprehension of this poem. Here it is, the poem, reading selection 5.3, The School by William Black. I love to rise in a summer morn, when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to a school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye, outward, the little ones spend the day in swining and dismay. Oh, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with a dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears unwhy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? O father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in spring day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Or how shall we gather what grief destroy, or bless the mellowing year when the blasts of winter appear? At the end of the poem, you could see a picture that best sketches the theme or message of today's poem, which we are going to learn. Once again, we have given the same slides for learning. It's reading comprehension. Students, you have to be very careful. यहाँ पे students जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से और बड़े गौर से जो है वो ये समझना होगी ये पोएम, क्योंकि इस पोएम के आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, और क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल पोएम के जो स्टैंजाज हैं उनमें से निकाले जाते हैं, और उन्हीं के उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 4-5 कैटेगरीज के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हंट्समैन हियर इन दिस स्टैंजा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि व्हाट इज़ द पैराफ्रेज ऑफ दीज टू फर्स्ट लाइंस ऑफ द गिवन स्टैंजा। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि एक्सप्लेन दिस स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाई पोइट हैज़ given metaphorically the name of a skylark sings here in this line in this stanza. So there are likely very limited questions which are been asked. ये जो है कुछ सवालात हैं जो कि पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स आपसे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुली। यहाँ पे आपने जो है वो कोशिश करनी होगी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से समझा जाए। आते हैं हम अभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इट इज़ हियर।
आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। पोइट कह रहे हैं कि मुझे समर की सुबह, गर्मियों की सुबह को उठना बहुत अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, जिसमें परिंदे जो है वो सुबह सुबह दरख्तों पे चहचहा रहे होते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन, दूर कहीं कोई जो है वो शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न, अपने जो है वो जो हॉर्न है, जो उसकी बहुत बड़ी आवाज़ लगाने वाला जो हथियार है, या जो है जो सींग होते हैं, जो कि हंट्समैन शिकारी जो है वो जंगल में बजाते हैं, तो उसकी बात करें कि दूर दराज कोई जो है शिकारी जैसे कुछ कोई बजा रहा हो। यहाँ पे जो है वो ये, जब दूर शिकारी अपना हॉर्न बजा रहा हो। हॉर्न कहते हैं यहाँ पे, हॉर्न यानी उसके जो है वो जो बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात करें। विंड्स यानी बजाना, वैसे विंड्स, विंड का मतलब हवा होता है, मगर यहाँ पे विंड्स लिटरली इसकी मायने होगी कि कुछ कोई चीज़ बजाना। एंड द स्काईलर्क सिंग्स विथ मी, और स्काईलर्क एक अ बर्ड हु सिंग्स एट अ ग्रेट हाइट, एक ऐसा परिंदा जो कि बहुत ऊंचाई पे जा कर के तो जो है वो गाता है, स्काईलर्क, और जिसको चंडोल पक्षी भी कहते हैं। तो ये परिंदा जो है वो चंडोल परिंदा जो है, ये कह रहा है कि वो जो है वो मेरे साथ गा रहा होता है। आह व्हाट स्वीट कंपनी, और ये कह रहा है कि किस तरह की ये बहुत ही अच्छी एक रफ़ाकत है। अब इस पोएम के अंदर आप देखें कि एक स्कूल बॉय जो है वो ये कहना चाहता है कि उसके जो है वो स्कूल जब वो जा रहा होता है इस इन दिनों में, तो उसके मज़े ख़राब हो जाते हैं, और ये कह रहा है कि इसको सुबह को उठना बड़ा पसंद है। और क्योंकि परिंदे जो है वो दरख्तों पे चहचहा रहे होते हैं, और ये ऐसे इसके लिए कि दूर दराज कहीं कोई शिकारी जो है वो अपना हॉर्न बजा रहा हो, और परिंदा कहीं कोई गा रहा हो। ये कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है इसके लिए। सेकंड स्टैंजा पे आ जाते हैं अभी। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, मगर ये कह रहा है कि ऐसी गर्मियों की सुबह को स्कूल जाना, आह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सारे मज़े को किरकिरा कर देता है। अंडर क्रूअल आई आउटवर्न, आउटवर्न का मतलब होता है कि कोई चीज़ थका दे आपको। कह रहा है कि वो उन दिनों में स्कूल जाके क्रूअल आई, स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मेटाफरिकली जो है कह रहा है, इस क्रूअल ये टीचर्स जो है जो कि सख्ती कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो ये इशारा है कि अंडर अ क्रूअल आई, यानी टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो आउटवर्न ये थक जाते हैं, ये इंजॉय नहीं कर पाते उस मौसम को जो बाहर है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और ये कह रहा है कि बाकी थोड़ा सा दिन बच जाता है जिसमें वो अपना दिन गुजारते हैं इन साइंग एंड डिसमे, बाकी का दिन जो है वो क्लास के अंदर आहें भरते हुए, या जो है वो बहुत ज़्यादा सोच में जो है वो ज़ाया कर देते हैं। इस जो है वो स्टैंज़ा के अंदर स्टूडेंट्स जो है पोएट कहना चाहता है कि एक बच्चे की फीलिंग्स को बयान कर रहा है कि समर को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मगर जो है वो स्कूल में और टीचर्स जो है जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, ये कह रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल पढ़ाना टीचर्स का सख्ती के साथ, वो जो है वो सारे मज़े को करकरा कर देता है। चलते हैं अगली स्टैंज़ा की तरफ। और देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट, ये कह रहा है फिर एक वक्त आता है कि मैं जो है वो थक के बैठ जाता हूँ। ड्रूपिंग, ड्रूपिंग का मतलब एग्जॉस्टेड, थक के बैठ जाना, थकना, ड्रूपिंग। एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर्स, और बहुत सारे घंटे जो है ये कह रहा है कि वो सोच विचार में गुजार देते हैं, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो दिन का है वो स्कूल के अंदर क्लास के अंदर जो है सोच में ख़त्म हो गया या ज़ाया हो गया। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ये कह रहा है कि मुझे किताबों में मज़ा नहीं आता। नॉर सिट इन लर्निंग्स पावर, और ये कह रहा है कि मुझे जो है वो जो है वो सीखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा, क्लास में बैठ के सीखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा। यानी ये
जो है कह रहा है कि क्लास में बैठ के सीखने में इसको मज़ा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये कहना चाहता है कि इसको नेचर में ज़्यादा सीखने में और लर्निंग में मज़ा आता है। बाहर जो है वो ये वेदर को एंजॉय करता रहे और इसी तरह से। बावर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स शेडी शेल्टर होता है। यहाँ पे बावर का मतलब है कि क्लास के अंदर। उसने एक लिटरेरी जो है मायने यहाँ पे इस्तेमाल की है। वर्न थ्रू विद अ ड्रीयरी शावर, ये कह रहा है कि और ये कह रहा है कि इस तरह से जो है वो इस परेशानी की हालत में ये थक सा जाता है। वर्न थ्रू यानी ये परेशानी की हालत में विद अ ड्रीयरी शावर, ये जो है वो थक सा जाता है। यहाँ पे ड्री के मतलब है डिप्रेस्ड होना, ब्लीक यानी बहुत ही जो है ये डिप्रेस्ड हो जाता है, थक जाता है। वॉन थ्रू यानी इस सोच विचार और परेशानी का जो सारा दिन इसका गुजरा है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे इस स्टेंजा में पोइट जो है वो कहना चाहता है, या एक तो ट्रेडिशनल और इनोवेटिव टीचिंग की तरफ भी इशारा कर रहा है कि क्लासेस के अंदर बहुत सारे हम टीचर्स जो है वो ट्रेडिशनल जिस तरह से पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये पोइट कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो हो सकता है कि बाहर जो है नेचर के थ्रू सीखना चाहते हों, या इनोवेटिव ऐसे आइडियाज़ टीचर्स को सोचने चाहिए, बजाय इसके कि वो कन्फाइंड क्लास के अंदर, जैसे परिंदा जो है वो किसी केज के अंदर है, इसी तरह से स्टूडेंट्स भी उसको फील कर सकते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, किस तरह से एक परिंदा जो कि मज़ों के लिए पैदा हुआ है, सेट इन अ केज एंड सिंग, वो एक केज में बैठे, एक पिंजरे में बैठे और गाता रहे। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, किस तरह से एक बच्चा जो है जो कि डर रहा है, डर के सिमटा हुआ है, फियर्स अनॉय, अनॉय यानी उसको जो है जो उसको खौफ है वो उसको मसले में डाल रहा है, जो खौफ है वो उसके लिए मसला खड़ा कर रहा है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, किस तरह से एक बच्चा जो डर रहा है, जो खौफ के आलम में है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, वो किस तरह से जो है वो अपने पंख जो है वो थकावट में खोल सकता है। बट ड्रूप जब थक जाए, हिज टेंडर विंग, तो किस तरह से अपने पर जो है वो जो नाजुक पर हैं वो खोल सकता है। टेंडर का मतलब होता है नाजुक। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वो कह रहा है कि वो अपनी जवानी की जो बहारें हैं वो भूल जाता है। तो इस पोएम के अंदर जो है यहाँ पे पोइट ने मेटाफरिकली जो है वो इस्तेमाल किया है कि जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं क्लासेस के अंदर, वो हो सकता है ख़ुद को जो है वो एक परिंदे की तरह पिंजरे में जो है वो पाएँ। तो यहाँ पे जो है वो अ एक स्टूडेंट को क्लास में पढ़ते हुए तशबीह दे रहा है कि वो ऐसे जैसे एक परिंदा जो है किसी पिंजरे में बैठा हुआ हो। ओ फादर मदर, यहाँ पे फिर आ भर के जो है बुला रहा है, मतलब ये मुखातिब है, अपने पेरेंट्स से मुखातिब है, उनको बुला रहा है कि इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, उनको कह रहा है। निप्ड का मतलब है कुचल देना। बर्ड्स यानी जो नई नई जो शाखें निकल रही होती हैं एक पौधे से, उसको कहते हैं। इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, अगर नई ताज़ी शाखें पौधे की मसल दी जाएंगी, निप्ड यानी मसल के ख़त्म कर देना, यानी ये पेरेंट्स को आए हैं दुहाई दे रहा है कि वो इसका कुछ करें, इन दिनों में स्कूल उसको ना जाने दें। एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, ये कह रहा है कि उनका जो जोबन है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। ब्लॉसम यानी उनकी जो जवानी है, जोबन है। ब्लॉन अवे का मतलब है ख़त्म हो जाना। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स, ये कह रहा है कि नाजुक जो पौधे हैं, ये कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो नाजुक पौधे की मानद होते हैं। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स, और नाजुक पौधे जो हैं, आर स्ट्रिप्ड, वो जो है उनको वो ख़राब कर रहे हैं, मसल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिप्ड का मतलब है टू रिमूव द लीव्स, यानी पत्तों को तोड़ देना। ये कह रहे हैं कि आप नाजुक पौधों के पत्ते तोड़ रहे हैं। ऑफ देयर जॉय इन दिस स्प्रिंगिंग स्प्रिंगिंग डे, और इस स्प्रिंग जो है बहार के दिन के मज़े ख़राब हो जाते हैं। बाय सारो एंड केयर जिसमें, तो ये कह रहा है कि वो गम और उस जो है वो परेशानी की आलम में जब वो क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट स्टैंजा है हमारी, हाउ शल द समर अराइज एंजॉय, किस तरह से जो है एक गर्मियों की सीज़न जो है वो ये कह रहा है कि मज़ा दे सकती है, ये क्वेश्चन कर रहा है। और द समर फ्रूट्स अपीयर, किस तरह से जो है वो समर में ये कह रहा है कि समर की सही तरह से वो जो उसका रिजल्ट है वो हासिल कर सकते हैं। और हाउ शल वी गैदर व्हाट ग्रीव डिस्ट्रॉय, ये कह रहा है कि किस तरह से हम जो है वो सारे ये चीज़ें ले सकते हैं जब गम जो है इन्हें ख़त्म कर देता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आहें भर रहा है और एक सवाल है एक बच्चे का कि वो सीज़न में ये कह रहा है कि उस सीज़न में ये कैसे जो है वो मज़े ले सकते हैं, कैसे जो है वो सही तरह से अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो वक़्त जो है वो खेलने कूदने और उसके मज़े का होता है और वो जो है परेशानी के आलम में अपना जो है टाइम ख़राब कर देता है। और ब्लेस द मेलोइंग ईयर, मेलोइंग कहते हैं राइपनिंग, मैच्योरिंग, यानी अ, पकने वाले साल या वो साल कि जिसमें वो तैयार हों, सोच विचार में आएँ। और ये कह रहा है कि वो जो अच्छे इसके साल हैं, वो जो उसके तैयार होने के साल हैं, समझ-बूझ वाले साल हैं। व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, वो कह रहा है वो तो ख़राब कर देते हैं, उसके बाद तो जो है वो सर्दियों का सीज़न आ जाता है और उसके सारे मज़े ख़राब हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। और आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पिक्चर जो है वो ये डिस्क्राइब कर रही है बहुत सारे सवालात के, एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को। और ट्रेडिशनली जो है वो जैसे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो ये बच्चा जो है बड़ा मासूम, और आप इसकी शक्ल दे सकते हैं कि बड़ा ही बेचारा जो है वो मासूमियत के साथ इसकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं। तो विलियम ब्लैक ने ये सवालात अपनी पोएम में जो है वो हमें यहाँ पे बताए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारी पोएम के अंदर जो है वो हम जैसे कि पढ़ते आए हैं कि टाइप ऑफ स्टैंजास, तो ये जो है वो हमारी क्वाइंटेक्ट्स जो है वो स्टैंजा है, यानी एवरी स्टैंजा कंसिस्ट अपॉन 5 लाइंस, 1 2 3 4 5। और आपको पता है कि हम 5 लाइंस को जो है वो क्वाइंटेट्स कहते हैं। तो ये जो है वो क्वाइंटेट्स जो है वो टाइप ऑफ स्टैंजा जो है वो विलियम ब्लैक ने अपनी पोएम के अंदर की हुई है। और जैसा कि आप देखें ये पोएम जो हम पढ़ आए हैं, थेमेटिकली जो है वो इस पोएम के अंदर स्पीकर जो है हमें बताना चाहता है, पोएट जो है वो हमें ये बता रहा है कि वो समर मॉर्निंग में जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि इंग्लैंड में आपको पता है ये विलियम ब्लैक जो है ये इंग्लिश मैन है और इंग्लैंड के सीज़न की बात कर रहा है कि ये इसको बहुत ज़्यादा मज़ा दे रहा होता है और वो साल जो हैं उसके बहुत मज़े के साल होते हैं। मगर ये कह रहा है कि जो है वो मगर स्कूल और उसकी जो है वो क्लासेस के अंदर जो पढ़ना होता है, वो सारे मज़े को ये कह रहा है कि ख़राब कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। वी हैव डन आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आपको मैंने बताया कि इसमें से क्वेश्चन आंसर्स कौन से आते हैं, वो टिपिकल क्वेश्चंस भी बताए। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है। हर स्टैंज़ा बाज़ दफ़ा स्टैंज़ा आ जाती है और उसमें से टिपिकल 4-5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमें एनुअल एग्जामिनेशन में सॉल्व करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि वो क्या कौन से क्वेश्चंस होते हैं। वो वर्ड्स मायने भी होती है, वो जो है वो पैराफ्रेज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो कुछ लाइनें जो आपसे कह सकते हैं आप इनको एक्सप्लेन करें। तो ये सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आते रहते हैं। अभी आ जाते हैं हम समरी की तरफ जो है वो, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। The Schoolboy is a poem taken from the William Black's collection Songs of Innocence. It is a poem expresses the feelings and emotions of a young boy going to school in summer days. ये जो स्कूल बॉय ये पोएम है, ये विलियम ब्लैक की जो है वो पोएम्स की कलेक्शन जो है वो इनोसेंस से लिया गया है। और ये पोएम जो पोएम बता रही है कि ये फीलिंग्स जो है वो और इमोशंस एक नौजवान बच्चे की बता रही है जो कि समर डेज में वो स्कूल के अंदर गुजारता है। The boy loves summer morning and considers the school days in the season as misery to him. और ये जो बच्चा है वो गर्मियों के सीज़न को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो समझ रहा है कि उसके जो वो दिन हैं, वो जो क्लास में गुज़ारता है, स्कूल में गुज़ारता है, वो
उसके जो है सारे फन और मज़े को ख़राब कर देते हैं. ही इज़ सो डेस्परेट to enjoy those days, but the school activities make his mood gloomy and dismay. मगर ये कहना चाहता है कि ये बहुत ज़्यादा ये मज़ों के लिए तैयार है, वो मज़े लेना चाहता है या अपनी ज़िंदगी में जो है खुश होना चाहता है, मगर ये कह रहा है कि स्कूल एक्टिविटीज़ और स्कूल का काम जो है इसके सारे मूड को तबाह व बर्बाद कर देता है. इसके बाद द पोएट एड्रेसेस पेरेंट्स इन लास्ट टू स्टेंजाज में हमने ये भी देखा कि पेरेंट्स को जो है वो पोएट कह रहा था कि जी वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल के अंदर या एक बच्चा जो है वो मतलब अपने आँखों में सवालात लेके अपने पेरेंट्स से कह रहा है कि आप उनको जब स्कूल छोड़ते हैं या पढ़ाई के लिए कहते हैं तो ये ऐसे है जैसे कि एक नाजुक जो है वो पौधे की जो है नई शाखें जो है वो मसल देना. तो ये उसकी मानद है. This poem also addresses the traditional learning in the classroom, which is boring and it is not fascinating. और इस पोएम के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है कि जो है वो ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती है टीचर्स की वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और फैसिनेटिंग नहीं होती, अच्छी नहीं होती इतनी. ऑन द अदर हैंड इट draws attention of the teachers and educationalists to educated children in natural environment. और यहाँ पे अपील की है पोएट ने जो एजुकेशनलिस्ट हैं और जो है वो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं. लर्निंग विथ नेचर एंड फन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लासेस. और नेचर के साथ एक नेचुरल अंदाज के साथ स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर या बाहर क्लास लेस जो है वो के पढ़ाया जाए टू मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड फन फॉर देम, ताकि जो है वो लर्निंग जो है वो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके और उसके लिए एक फ़न हो. इट वुड बूस्ट क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स. तो ये जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और जो है वो स्टूडेंट्स अपनी जो है वो लर्निंग में दिलचस्पी ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम. ये भी हमने कर ली यहाँ पे. आज जो है वो अब आ जाते हैं जो है वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली इस साल जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर भी किए हुए हैं. चंद चीज़ें मैंने शेयर की हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इस साल आए थे. तो अब जो है वो आप यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन है हमारे जो है बुक के अंदर इन इंग्लिश पोइट्री. द स्प्रिंग सीजन इज यूजुअली अ सिंबल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. आपको पता है स्प्रिंग सीजन जो है वो ये जो है सिंबल माना जाता है कि ये बर्थ या रीबर्थ का जो है वो सिंबल है. समर जो है वो सिंबल है ब्लूम या जवानी का, यूथ का. ऑटम ऑटम a symbol of old age and decay, and winter and snow a symbol of death. What do you think the speaker means by the blasts of winter appear? और अब आपने ये सवाल का जवाब देना है कि जब पोएट आखिरी स्टेंजा में कह रहा था कि द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर्स इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, तो इसकी क्या है, स्पीकर क्या सोच रहा है? सो इट्स आंसर वुड बी आई हैव रिटन हियर. मैं जो है वो जवाब लेके आऊँ इसका. और ये इतना जवाब आपने लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स जो है वो ये ऑलमोस्ट 2 to 3 जो है वो आपके इनके जवाबात आ जाते हैं मार्क्स के. तो इस वजह से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. The last line describes the feelings of a boy, how he enjoys the warm summer season and considers winter as disaster to him. सो ये कह रहा है कि समर जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और विंटर जो है उसके लिए जब आ जाए तो वो ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही जो है उसके लिए आ रही हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आंसर. आपने इस तरह से इसका जवाब लिखना है. क्वेश्चन जो है वो एक और जो है वो है डिस्कस करने वाला है इस पोएम के अंदर जो है वो उस पे आप फोकस करें. और वो ये है कि आइडेंटिफाई वन वर्ड मेटाफर्स फॉर यूथ फ्रीडम एंड इंस्ट्रक्शन इन द पोएम. ये कह रहा है कि आप जो है वो निशानदेही करें जो मेटाफर्स यूज़ हुई हैं यूथ के लिए, फ्रीडम और इंस्ट्रक्शंस के लिए किताब के अंदर वो किस की जगह पे जो है इस्तेमाल हुई है. तो इसका जवाब यही है, द मेटाफर फॉर द वर्ड यूथ इज समर, फ्रीडम एज बर्ड एंड इंस्ट्रक्शन इज लर्निंग. सो दीज आर सम ऑफ द मेटाफर्स विच पोएट हैज़ यूज्ड इन दिस पोएम. तो इसके बारे में भी जो है वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू आंसर लाइक दिस. यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ये हमारा जो है वो आखिरी दिस इज़ द लास्ट
स्लाइड वी आर गोइंग टू लर्न, और वो है कि हाउ इजली कैन यू आइडेंटिफाई विद द स्पीकर ऑफ द पोएम। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कौन जो है वो पोएम हमें जो है वो बता रहा है, मतलब यानी ये पोएम बताने वाला हमें कौन है, एक बच्चा है, पोएट है, एक बंदा है, कौन है। डिड यू हैव द सेम फीलिंग्स एज द स्पीकर ऑफ द पोएम? क्या आपको भी जो है वो वैसे ही महसूस करते हैं जैसे कि इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो महसूस कर रहा है, व्हेन यू वर अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, जब आप जो है वो स्कूल गोइंग चाइल्ड थे? सो दिस इज द डिटेल्ड आंसर। Students, you can go through this answer, or iska answer be yes, the boy loves summer morning, but to have to go to school when the weather is so nice is a misery to him. He sits at his desk in boredom and cannot pay one iota of attention to the lesson. So desperately does he wish to be playing outside. Here the poet is comparing young children so full of energy and happiness to songbirds who deserve to tumble free and soar on the winds. But like birds are trapped in a cage, children trapped in a classroom cannot express themselves, cannot capitalize on all that excess energy, and therefore their potential is being wasted. स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी आपने देखा कि जवाब वही है जो कि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। इस जो है वो जो है वो आपके जो है वो क्वेश्चन के आंसर में। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। ये था हमारा जो है वो आज का लेक्चर, जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, कि आपको ये पोएम समझा सकूं, और इसकी जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके आपको समझाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एनुअल एग्जामिनेशंस में आपको पता है कि ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे इनमें से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, जो कि आपने जवाबात लिखने होते हैं। और जो है वो विलियम ब्लैक जो है वो किस चीज़ को, इसकी समरी हमने की, थेमेटिक जो है व्यूज़ कुछ मैंने आपको बताया, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, जो एरियाज़ जो कि एनुअल एग्जामिनेशन में होते हैं, तो वो भी आपको मैंने बताए। थैंक यू वेरी मच यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग दिस। और इसमें जो भी आपको बाकी के क्वेश्चंस या कोई भी हैं, तो आप जो है वो उस हवाले से जो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।